بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو عقیقہ کے متعلق عرض کروں گا کہ عقیقہ کیا ہے۔ پہلے میں حدیث پاک سے آپ کو روشناس کراؤں گا عقیقہ کے بیان میں، اور اس کے بعد فقیہ مسائل عرض کروں گا عقیقہ کے مسائل، تاکہ آپ کو عقیقہ کے متعلق بھی سمجھ آ سکے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کر دو یعنی اس کا سر منڈا دو۔ ابو داؤد، ترمذی شریف میں اور نسائی میں حدیث موجود ہے۔ ام قرظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتی ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں حج نہیں کہ نر ہوں یا مادہ۔ امام احمد اور ابو داؤد، ترمذی شریف، نسائی شریف میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے۔ گروی کا مطلب ہے کہ لڑکے کے جو ہے عقیقہ کرو، لڑکے کا عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، یعنی لڑکے کا نام رکھا جائے، اور سر منڈایا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض نے کہا کہ بچہ کی سلامتی اور اس کی نشوونما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقہ سے وابستہ ہیں۔ ترمذی میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈا دو اور بال کے وزن پر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ عزیز محترم، ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کی طرف سے 1 مینڈھے کا عقیقہ کیا، اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ 2 مینڈھے ذبح کیے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے بچہ پیدا ہوتا، کسی کے ہاں یعنی بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچہ کے سر پر پوت دیتا۔ اب جب کہ اسلام آیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کا سر منڈا دیتے ہیں اور سر پر زعفران لگا دیتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچے لائے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تہنیک کرتے، یعنی کوئی چیز مثلا کھجور چبا کر اس بچہ کے تالو میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن پہنچے۔ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی میں ہجرت سے قبل میرے پیٹ میں تھے، بعد ہجرت قباء میں یہ پیدا ہوئے تو میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائی اور حضور کی گود میں ان کو رکھ دیا۔ پھر حضور نے کھجور منگائی اور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی اور ان کے لیے دعائے خیر، دعائے برکت کی، اور بعد ہجرت مسلمان مہاجرین کے یہاں سے سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا۔ یعنی مسائل میں اب
आपको फ़कीह अर्ज़ करता हूँ अकीका के मुतालिक। बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। हनफिया के नज़दीक अकीका मुबाह और मुस्तहब है। ये जो बाज़ किताबों में लिखा है कि अकीका सुन्नत नहीं, इससे मुराद ये है कि सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, वरना जब खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से इसका सबूत मौजूद है तो मुतलकन उसकी सुन्नियत से इनकार सही नहीं। बाज़ किताबों में ये है आया है कि कुर्बानी से ये मनसूख है, उसका ये मतलब है कि उसका वजूब मनसूख है। जिस तरह ये कहा जाता है कि ज़कात ने हकूक मालिया को मनसूख कर दिया, यानी उनकी फर्जियत मनसूख हो गई। जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब ये है कि उसके कान में अजान और कामत कही जाती। अजान कहने से इंशाअल्लाह ताला बलाएं दूर हो जाएंगी। बेहतर यह है कि दाहिने कान में 4 मरतबा अजान और बाएं कान में 3 मरतबा कामत कही जाए। बाद लोगों में से ये रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो ये अजान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो नहीं कहते। ये ना चाहिए, बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अजान और कामत कही जाए 7वें दिन उसका नाम रखा जाए और उसका सर मुंडाया जाए और सर मुंडने के वक़्त अकीका किया जाए और बालों को वज़न करके इतनी चांदी या सोना सदका किया जाए। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में अमूमन बच्चे पैदा होने पर छुट्टी की जाती है। बाद लोगों में मौका पर नाजायज़ जो है रस्में होती हैं, मसलन औरतों का गाना बजाना, ऐसी बातों से बचना और उनको छोड़ना ज़रूरी और लाजिम है। बल्कि मुसलमानों को वो करना चाहिए जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल से साबित है। अकीका से बहुत ज़्यादा रसूम में सिर्फ जो है कर देते हैं, अकीका नहीं करते। अकीका करें तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी और जो है मेहमानों के खिलाने के लिए गोश्त वगैरह भी हो जाए। बच्चा का अच्छा नाम रखा जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिनके कुछ मानी नहीं या उनके बड़े मानी हैं। ऐसे नामों से एहतराज करें, परहेज करें। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए जो है तय्यबा और सहाबा और ताबीन बुजुर्गान दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है। उम्मीद है कि उनकी बरकत से बच्चे के जो है शामिल हाल होगा। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान बहुत अच्छे नाम है, मगर इस ज़माना में ये अक्सर देखा जाता है कि बजाय अब्दुर्रहमान उस शख्स को बहुत से लोगों रहमान कहती है और गैर खुदा को रहमान कहना हराम है। अब्दुल खालिक को खालिक, अब्दुल माबूद को माबूद कहते हैं। इस किस्म के नामों में ऐसी नाजायज़ और तरमीम हरगिज़ ना की जाए। इस तरह बहुत कसरत से नामों में तस्गीर का रिवाज है, यानी नाम को इस तरह बिगाड़ देते हैं जिससे हकारत निकलती है और ऐसे नामों में तस्गीर पर गज़न किया जाए। लिहाजा यहाँ जहाँ ये गुमानों के नामों में तस्खीर की जा चुकी है, ये नाम न रखे जाएं। दूसरे नाम रखे जाएं, दूसरे नाम इसलिए रखे जाएं ताकि हकारत न हो। ये मसला आलमगीरी में मौजूद है। अज़ीज़ मोहतरम, बहार शरीयत में भी मौजूद है। मोहम्मद बहुत प्यारा नाम है, उस नाम की बड़ी बरकत, बड़ी तारीफ हदीसों में आई है। अगर तस्खीर का अंदेशा न हो तो ये नाम रखा जाए। और एक सूरत यह है कि अकीका का ये नाम और पुकारने के लिए कोई दूसरा नाम तजवीज़ कर लिया जाए। और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे बहुत होता है कि एक शख्स के कई नाम होते हैं। उस सूरत में नाम की बरकत भी होगी और तस्गीर से भी बच जाएंगे। मुर्दा बच्चा पैदा हो तो उसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं, बग़ैर नाम उसको दफन कर दें। और ज़िंदा पैदा हो तो उसका नाम रखा जाए, अगरचे पैदा होकर फौत हो जाए, मर जाए। अकीका के लिए 7वां दिन बेहतर है और 7वें दिन ना कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाएगी। बाद में ये कहा है कि 7वें या 14वें या 21वें दिन यानी 7 दिन का लिहाज रखा जाए और ये बेहतर है। और या ना रहे और याद ना रहे तो ये करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन को याद रखें, उससे एक दिन पहले वाला दिन जब आए तो वो 7वां होगा। मसलन जुमा को पैदा हुआ तो जुमरात 7वां दिन है और शनिचर को पैदा हो तो 7वां दिन जुमा होगा। यानी
पहली सूरत में जुमरात को और दूसरी सूरत में जुमा को अकीका करेगा, उसमें 7वें दिन का हिसाब ज़रूर आएगा। लड़के के अकीके में 2 बकरे और लड़की के अकीके में 1 बकरी ज़िबा की जाए, यानी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा जानवर मुनासिब है। और लड़के के अकीका में बकरियां और लड़की में बकरा किया जा भी हर्ज नहीं है। अकीका में गाय ज़िबा की जाए तो लड़के के लिए 2 हिस्से और लड़की के लिए 1 हिस्सा काफ़ी है, यानी 7 हिस्सों में से 2 हिस्से या 1 हिस्सा। गाय की कुर्बानी हुई उसमें अकीका की शिरकत हो सकती है, जिसका जिक्र कुर्बानी में अज़ीज़ान मोहतरम में कर चुका हूँ। बच्चा का सर मुंडाने के बाद सर पर ज़ाफ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है। अकीका का जानवर नहीं शरायत के साथ होना चाहिए जैसा कुर्बानी के लिए होता है। उसका गोश्त फुकरा और अजीज़ अकारब दोस्त अहबाब को किया तकसीम कर दिया जाए, या पका कर दिया जाए, या उनको बतौर ज़ियाफ़त वो औरत खिलाया जाए, वो जो है दावत खिलाई जाए। ये सब सूरतें जायज़ हैं। बेहतर यह है कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए बल्कि हड्डियों से गोश्त उतार लिया जाए। बच्चा की सलामती के लिए ये अज़ीज़ान मोहतरम नेक अफ़ाल है। और हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाए उसमें भी हर्ज नहीं है। गोश्त को जिस तरह चाहे पका सकते हैं, मगर मीठा पकाया जाए तो बच्चा के इखलाक अच्छे होने की हाल है। बात का ये कौल है कि सिरी पाए हजाम को और 1 रान जो है दाई को दें, बाकी गोश्त के 3 हिस्से करें और 1 हिस्सा फुकरा का, 1 अहबाब का और 1 हिस्सा घर वाले पकाएं खाएं। अवाम में ये बहुत मशहूर है कि अकीका का गोश्त बच्चा की माँ बाप और दादी नानी नाना न खाएं। ये अज़ीज़ान मोहतरम जहालत है और ये गलत मसला है। खा सकते हैं, उसका कोई सबूत भी किसी किताब में नहीं मिला, ना आप भी देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो अज़ीज़ान मोहतरम मुझे बताएं कि किसी किताब में हो, लेकिन किसी किताब में इंशाअल्लाह आपको नहीं मिलेगा। मैं बहुत फ़ुक़हा हदीस मुबारका और फ़ुक़हा कराम की जितनी भी किताबें हैं मेरे मुताला मैंने किया है और मेरे मुताले में हैं। लड़के के अकीका 2 बकरियां की जगह 1 ही बकरी किसी ने की तो ये भी जायज़ है। एक हदीस से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अकीका में 1 मींढा ज़िबा हुआ, जैसा मैंने हदीस मुबारक अर्ज़ की। उसकी खाल का वही हुक्म है जो कुर्बानी की खाल का है कि अपने सर्फ में लाए या मसाकीन को दे या किसी और नेक काम में या मुदस्सा में सर्फ करे। अकीका में जानवर ज़िबा करते वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है, उसे पढ़ सकते हैं, और याद न हो तो बग़ैर दुआ पढ़े भी ज़िबा करने में अकीका हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अकीका के मुतल्लिक़ जो मैं बयान किए हैं अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं तफ़सीर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की लिख रहा हूँ जिसका नाम है तफ़सीर करवानी, वो मेरे चैनल करवानी टीवी पर मौजूद है। आप उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। और ये जिस पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें रोज़े, नमाज और कुर्बानी के मसाइल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम इसको भी सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि आपको भी सवाब हो और मुझे भी सवाब हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।